হ্যালো, আশা করি তোমরা সবাই আমাকে শুনতে পাচ্ছ। জানি না কতটা কি শুনতে পাচ্ছ, বাট আমি এই লাইভটা বেসিক্যালি হিন্দিতে করতে চাই। কেন বলো তো? হিন্দিতে করলে না, মানে অনেক বেশি লোকের কাছ অব্দি জিনিসটা পৌঁছাবে। প্লাস আমি চাই এই জিনিসটা আজকে যতটা বেশি লোকের কাছে পৌঁছাবে ততটা বেশি ভালো। কেন বলো তো? নয়তো কি হবে, মানে এটা খুবই একটা ইনফরমেটিভ লাইভ, যদি তোমরা মিস করো প্রচন্ড কিছু মিস করে যাবে বস। কেন কি এই জিনিসটা না, মানে নিয়ে আমি দেখছি কেউ কোনো কথা বলছে না, ঠিক আছে? তো যদি দেখো যে মানে এমন কোনো সিরিয়াস টপিক যেখানে কেউ কথা বলছে না, মানে জিনিসটা ঘাপলা আছে, ঠিক আছে? তো আমি এই জিনিসটাকে কেন বলছি বলো তো? দেখার জন্য, যাতে তোমরা জানতে পারো যে কিরকম টাইপের জিনিস এখনকার যুগে হচ্ছে, বা কি কি জিনিস এখনকার যুগে হচ্ছে, বা কি কি জিনিসের থেকে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, ঠিক আছে? তো আসুক এক দুজন লাইফে, তো এক দুজন তোমরা যদি কেউ লাইভে জয়েন করো, দেন উই ক্যান স্টার্ট। আমি একটা জিনিস চেক করে নিচ্ছি ততক্ষণে। জয়েন করো, জয়েন করলে আমি স্টার্টটা করছি। হুম, তো যেটা আমি বলছিলাম, এক সেকেন্ড আমি একবার চেক করে নিচ্ছি লাইভটা সবকিছু ঠিকঠাক আসছে কিনা। লাইভটা একটু ল্যাগ করছে। তো যেটা আমি বলছিলাম, এক সেকেন্ড আমি একবার চেক করে নিচ্ছি লাইভটা সবকিছু ঠিকঠাক আসছে কিনা। চলো গাইস, এবার স্টার্ট করব। কিন্তু একটা জিনিস যেটা একটুখানি করে নি। চলো আমি জাস্ট 2-5 মিনিট একটুখানি দাঁড়াও গাইস। সবাই একটা সেকেন্ড দাও আমাকে, আমি একটুখানি কিছু সেট করে নিই, অ্যান্ড দেন উই ক্যান গো। খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইভ, এটা কেউ মিস করো না প্লিজ। কেন কি আজকে আমি যে জিনিসগুলো, যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলতে চলেছি, সেগুলো হয়তো আমার পরে আর কেউ বলবে না। কেন কি তাদের বুকের পাটা নেই, বা তারা বলতে চায় না। কেন কি তারা এই জিনিসগুলো থেকে ইনকাম করে, কেন বলতে হবে? কেউ চায় না যে মানে লোকের ভালো হোক আর কি, এটাই ইজ দ্য মেন থিং অ্যান্ড বেসিক থিং, যেটাকে আমি আজকে সবার সামনে তুলে ধরতে চলেছি। যেরকম আজকের টপিক হবে বেসিক্যালি পিডিস। যারা জানো না পিডিস, হোয়াট ইজ পিডিস, বা হোয়াট ইজ সাবস্ট্যান্স, বা কি করে পারফরমেন্স আমরা ইনহ্যান্স করে লোকেরা, বা এইসব নিয়ে আজকে একটু কথা হবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস নিয়ে যেটা কথা হবে সেটা হচ্ছে কি কি কালোবাজারি চলছে মার্কেটে আজকাল। আজকে আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, অনেক কিছুই। ইটস আ ভেরি বিগ থিং। তো এগুলো নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাশন হবে। তো যেটা এখন আমি করছিলাম সেটা হচ্ছে আমি একটা জিনিস রেডি করছিলাম, ঠিক আছে? আমি একটা জিনিস রেডি করছিলাম, কি রেডি করছিলাম আর কেন রেডি করছিলাম সেটা আমি তোমাদেরকে বলছি। কি রেডি করছিলাম, ওকে, যদি আমরা এখনো বলি যে কি রেডি করছিলাম।
হ্যালো গাইস, উই আর রেডি। তো আমার সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, সব কিছু এভরিথিং ইজ রেডি। তো এখন আমি যেই কমন জিনিসটা নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, সবার প্রথমে যখন কেউ জিমে যায়, সবাই তো এমনি এমনি আর জিমে যায় না। ধরো কেউ তার বডিকে টোনিং করতে যাচ্ছে, বা সে ওভারওয়েট আছে, সে নিজের বডিকে একটা সুন্দর শেপে আনতে চাইছে, বা সে কোনো বডি বিল্ডিং অথবা যে কোনো স্পোর্টস খেলছে, সেইখানে নিজেকে পিকে নিয়ে যেতে চাইছে, তাই জন্য সে জিম করছে। ওকে, তো এটা হয়ে গেল ফান্ডা। তোমরা কি কারণে জিমে যাও আমাকে তোমরা লেখো, কি কারণে এক্স্যাক্টলি তোমরা জিমে যাও সেটা আমাকে লিখবে। এবং আমাকে আরেকটা জিনিস যেটা লিখবে সেটা হচ্ছে কি বলতো, যে ও সরি, এটা আমি হিন্দিতে করবো, মানে বলবো সবকিছুই, কারণ কি বেঙ্গলি তোমরা সবাই নাও বুঝতে পারো, হিন্দিটা ম্যাক্সিমাম लोग जाने बा बुझे। तो आज का मैं जो टॉपिक है, ये तो है जो हम लोग जिम क्यों जाते हैं, एंड सब कुछ आज बहुत कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके सब कुछ। तो पहले जो मैं बताने जा रहा था कुछ मिथ्स, ठीक है, को बस्ट करेंगे आज। जो पहला नंबर का मिथ है कि हमको वेट लॉस करना है। सबसे बड़ा कॉमन मिथ जिम में आता है कि हमको वेट लॉस करना है, पर हाँ हेलो, थैंक यू टू ज्वाइनिंग भाई। ये वाला लाइव देख लो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस दर। और एक चीज तुमको जो पता चलेगा, अनफिल्टर बातें होगा बहुत सारी चीजों के बारे में, जो जो जिम करते हैं या फिर जिम के आजू बाजू के बंदे हैं जो सप्लीमेंट सेल करते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में बहुत सारा कुछ है। आज मैं बहुत कुछ मतलब डिस्क्लोज करने वाला हूँ, जो कि जिम इंडस्ट्री में या फिर फिटनेस इंडस्ट्री में, सो कॉल्ड फिटनेस इंडस्ट्री में हो रहा है, चल रहा है, और जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी आती है जैसे कि परफॉर्मेंस इनहेंसर, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो उस बारे में बहुत कुछ डिस्कशन करना है अभी। तो पहला जो चीज जो मैं बोल रहा था, जो कि था आपका मिथ्स, यस। तो पहला जो मिथ्स है, जो मैंने आपको बोला कि फैट लॉस, सॉरी वेट लॉस, जो आप लोग सोचते हो दिमाग में कि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बल्की हो गया हूँ, या फिर मोटी हो गई हूँ, फिर मोटा, जो भी है, तो उसको मेरे को घटाना है। तो दिमाग में पहले एक बात रखिए कि आप वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप 100 किलो के हो पर दिखते फिट हो, तो आपके पास मसल मास है, फैट नहीं है। पर अगर आप ओवर शेप हो, ओवर साइज हो, तो आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और इसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो? कार्डियो से भाई। जो लोग फैट लॉस कर रहे हो बहुत गंदा फंसोगे, क्योंकि कार्डियो से क्या होता है कि हमारा फैट लॉस तो होता है, पर मसल बिल्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए स्किन जो है लटक जाता है जो कि बहुत बेकार लगता है देखने में, और ये कभी ठीक नहीं होता है। इसको सही तरीके से आपको करने के लिए आपको चाहिए एक पर्सनलाइज डाइट और एक पर्सनलाइज डिजाइन वर्कआउट शेड्यूल, सॉरी। तो ये आपको कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, तो ये मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, पहले जिम जाओ, अपने बॉडी टाइप को समझो, डॉक्टर के साथ बैठो, बैठ के डॉक्टर को पूरा टेस्ट रिपोर्ट दो, जो जो आपके साथ हुआ है। जैसे कि आपका अगर कोई इंजरी है, देखिए अगर मैं ट्रेनर हूं, तो मेरे को तो नहीं पता होगा कि आपके बॉडी में कैसा क्या मोच है, कि चोट है, कि क्या है। मेरे को आपके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा पहले, जो भी है। मतलब आपको अगर कोई लंग्स का कुछ है, या फिर कोई नी पेन है, कुछ भी, आपका एज ज्यादा है, सब कुछ प्रॉपर जानने के बाद ही मैं बोलूंगा सभी ट्रेनर लोगों को कि डाइट बनाए। और एक चीज, डाइट और वर्कआउट शेड्यूल जो है, वो बनाने से पहले एक चीज और आप उनसे पूछ लीजिए कि डाइट बनाने से पहले कि आपको किसी भी चीज से एलर्जी तो नहीं, या फिर कोई चीज आपके बॉडी में जाके उल्टा रिएक्ट तो नहीं करता है। अगर उनको नहीं पता है तो उनको प्रॉपर टेस्ट कराओ। उनका पैसा खर्च होगा, पर ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर उनको नहीं पता है कि उनका बॉडी में क्या अच्छा रिएक्ट कर रहा है, क्या बुरा इफेक्ट कर रहा है, अगर वो उसको अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाएगा, तो वो सेफ रहेंगे। और बॉडी बिल्डिंग करना या फिर जिम करना दोनों ही अलग चीज है, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। जो फैट लॉस करने आते हैं जो लोग, उनका तो शेप अच्छा बन जाता है, सब कुछ हो जाता है अच्छा,
पर जो लोग वेट लॉस करना आता है ब्रो, मान के चलो ये मेरे हाथ में एक पत्थर है, ये मान के चलो ये आप हो, मान के चलो आप जो हो आप 80 किलो के हो, ठीक है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप ये पत्थर हो और आप 80 किलो के हो। अभी आप आए हो कि भाई या फिर बहन मेरा वेट ज्यादा हो गया, वजन बढ़ गया, मेरे को अपना वेट लॉस करना है। इट्स अ रॉन्ग थिंग। आप बोलो कि मेरे को अपना फैट लॉस करना है, अपने बॉडी को टोन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन, ये करो, ना कि वेट लॉस, ठीक है। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि कार्डियो करो इससे ही फैट लॉस होता है या फिर वेट लॉस होता है, तो उसके मुंह पे ऐसा चप्पल उठाओ फेंक के मारो, क्योंकि खाली कार्डियो से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डाइट ऑन पॉइंट नहीं रखोगे, अगर आप वर्कआउट ऑन पॉइंट नहीं रखोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। खाली अगर आप डाइट रखोगे घंटा कुछ नहीं होगा, खाली अगर वर्कआउट रखोगे कुछ नहीं होगा। दोनों को मिलाओ तो आपका होगा। और रिकवरी, मेन बात जो है, रिकवरी अगर नहीं होगा तो आपका बॉडी में कुछ भी इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी का जो मसल है या फिर जो मास है, ठीक है, वो बनता कैसे है पहले हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी अलग टाइप से वर्क करता है। जैसे कि मेरा बॉडी एक, मैं बहुत दिनों से जिम किया हूं तो मेरा बॉडी जानता है कि कैसे क्या करना है। मेरा मसल मेमोरी अच्छा है तो मैं छोड़ भी दूंगा तो बहुत जल्दी उसको गेन हो जाएगा। पर आप पहली बार के लिए कर रहे हो, आपको पहले ये समझना पड़ेगा और आपके ट्रेनर को भी ये समझना पड़ेगा कि आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या लॉस है, आपका क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। ये सब कुछ आप लोगों को पहले जान लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि जिम कर रहे हो मतलब वो 100 किलो मार रहा है तो मेरे को भी 150 किलो, नहीं, मत करो। आप अपने आप से कंपटीशन करो, ना कि बाहर वाले किसी से। देखो अगर मैं एक 100 किलो मार रहा हूं तो आई नो कि मेरा उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। पर आप अगर 100 किलो मार रहे हो तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप वो वर्कआउट क्या है या फिर किस लिए कर रहे हो या फिर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रीजन क्या है। अगर मैं आज जाके कोई फैंसी वर्कआउट करता हूं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जिम के बंदे मेरे को कॉपी करने लग जाते हैं। पर एक बात तो है कि वो गलत मारते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो किस चीज का वर्कआउट है। आज मैंने जाके बैक ट्रेन किया, फिर मैंने देखा जैसे मैं बैक ट्रेन कर रहा था उसको लगे कि वो शोल्डर का वर्कआउट है, ठीक है। तो वो शोल्डर को लेके ऐसे ऐसे लैटरल रेजेस जैसा कुछ कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि क्या आपको सही में लगता है कि आप किसी का कॉपी करके मतलब आप सही में कर लोगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। हाँ, तो इधर एक चीज पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैट लॉस जो होता है वो होता है फैट कटना बॉडी से, मास रहेगा, बॉडी का जो एक्स्ट्रा शेल ऑफ फैट है वो हट जाएगा, ठीक है। और वेट लॉस जो है, वेट लॉस बहुत ही वाहियात वर्ड है, पता नहीं किसने इंट्रोड्यूस किया, नहीं होना चाहिए था। जो कि वेट लॉस बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलो आप कुछ खाए नहीं, दिन से कुछ नहीं खाए, पर आपका वेट लॉस हुआ, पर वो आपका फैट लॉस नहीं हुआ। आप जब फिर से खाना खाओगे वो सेम जगह पे आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों का बॉडी इज एक्टिंग लाइक एन सेविंग्स अकाउंट। मान के चलो कि आपके बॉडी में जितना कैलोरीज है उसको आप पैसा मान लो। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, मतलब जो 1 लाख कैलोरीज है, ठीक है। आप अगर रोज 200 करके कैलोरीज या फिर 200 करके रुपए उसमें घुसाओगे, 100 करके निकालोगे, तो क्या लगता है वो कभी खाली होगा? नहीं होगा ना। आपको 200 करके डाल रहे हो तो आपको 300 या फिर 400 करके निकालना भी पड़ेगा, तभी तो जाके खाली होगा। इसको ही बोलता है फैट लॉस और वेट लॉस। दोनों सिमिलर है, सेम सेम बट डिफरेंट। बट कैसे डिफरेंट है, कैसे सेम सेम है, ये भी बताते हैं। तो देखो, फैट लॉस जो लोग करने आते हो जिम में, उनको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट ऑन पॉइंट, और आपको खाना है कि लीन प्रोटीन खाना है, लीन प्रोटीन, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप लीन प्रोटीन कैसे खाओगे? आपको हाथ में गूगल बाबा है, जीबिनाई बाबा है, आपको उधर जाके लिखना है कि लीन प्रोटीन क्या है। आप अगर वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से लिखना है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो उस हिसाब से लिखना है। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको पता है ये सब चीजें। पर गलती क्या हो जाता है, जहां पे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए आज का लाइव है, ठीक है। आज मैं आया हूं लोगों को एडुकेट करने, ठीक है, कि लोगों को पता चले कि सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, इसका बस डिफरेंस बताने आया हूं। मैं कोई नहीं होता हूं कि मैं बोलूं
तो ये लोग करने लग जाएंगे, नहीं करोगे। मैं जस्ट इतना बताने आया हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। ठीक है, ये वीडियो या फिर ये लाइव देखने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो जाके फिर से सेम गलती करेंगे, 110%। बहुत सारे लोग ऐसे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो गलती नहीं करेंगे। आज हम उनको पकड़ने वाले जो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो, आप तो एक लाइव में या फिर एक सेशन में किसी को समझा तो नहीं सकते कि ये गलत है कि ये सही है, पर समझना आपको है, क्योंकि लाइफ आपका है। कोई भी कुछ भी अंड भंड का चीज दे रहा है कि ये चला लो तो आपका फैट लॉस हो जाएगा, ये चला लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, नहीं करना है। पहले मान के चलो ये कोई सब्सटेंस है, जिम ट्रेनर ने या भैया ने मेरे को दिया है, ये खा लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, फटाफट वेट कटेगा, फटाफट। नहीं होता है, नहीं होता है। पर आप बोलोगे मैंने खाया था, मेरा तो हुआ। हुआ क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता, क्योंकि आप उतना डीप में कभी जाते ही नहीं हो। देखो क्या होता है अक्सर कि अगर आपको कोई बंदा एल कार्निटाइन दे, जो कि सेफ होता है, उसमें आपका फैट लॉस होगा। पर मेटअप कैसे होता है फैट लॉस, पहले हमको ये जानना पड़ेगा। जैसे मैंने बैंक वाला बताया था वो तो समझ गए होंगे। तो आपका जैसे फैट लॉस होता है, फैट इज अ स्टोर्ड एनर्जी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपका जब नॉर्मल डे में एनर्जी कम होगा तो आपका बॉडी फैट से एनर्जी खींचेगा। और एक बात, आप अगर ओवर कार्डियो या फिर ओवर ट्रेन कर रहे हो मसल को बिना रिलैक्स किए, तो आपका मसल लॉस होगा। देखो मेन बात क्या होता है कि आप अगर 200 किलो के हो या फिर 100 किलो के, मान के चलो 100, तो आप उधर से कट कर रहे हो बिना नॉलेज के कि आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है ना। तो आप बिना नॉलेज के उससे कट कर रहे हो, तो आप लीन हो गए, आप सोच रहे हो मैंने बहुत भयंकर का मतलब वेट लॉस कर लिया, मतलब बहुत कुछ कर लिया, आप पहुंच गए सीधा 40 किलो में। क्या उखाड़ लिया भाई, क्या उखाड़ लिया बोलो? कुछ नहीं उखाड़ा, उल्टा लॉस कर दिया। क्या लॉस किया? मसल लॉस। वो जो आपका 100 किलो बॉडी पे फैट था, जो भी वजन था आपका, उसमें पूरा तो फैट नहीं था, मान के चलो उसमें 40% फैट था, पर बाकी का 60% तो मसल था मेरे बॉस। तो आपने मसल भी तो लॉस किया साथ में, खाली तो फैट लॉस नहीं हुआ आपका, वो वेट लॉस। वेट लॉस में का मसल के साथ साथ फैट दोनों कटा है, दोनों के साथ साथ आपका भी कटा है, क्योंकि फिर से वो मसल बनाने में आपका घिस जाएगा। तो सेफ क्या है कि आप मसल को सेव करके रिजर्व करके अपना फैट लॉस करें। ये पहले समझने वाला बात है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फैट लॉस और वेट लॉस इतना तो समझ ही गए होंगे कि दोनों डिफरेंट है। और आपको करना है, गूगल कर लेना बॉडी रिकॉम्पोजिशन, उसमें क्या क्या करना हो तो उधर पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। करने के बाद उधर स्टेप्स फॉलो कर, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमारा पेड जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा कि जिसमें आपको मतलब आपका जो भी गोल होगा उसके अकॉर्डिंग। देखो सबका गोल ये नहीं होता है कि बॉडी बिल्डिंग का, नहीं, ये बात दिमाग में घुसा लो आप लोग भी, और जो लोग ट्रेनर लोग देख रहे हो वो लोग भी। सबका ड्रीम या फिर काम बॉडी बिल्डिंग नहीं होता, हम लोग करते हैं, हम लोगों का वो काम है। हम लोग एथलीट है, नॉर्मल लोग एथलीट नहीं है मेरे भाई। उनको हाई प्रोटीन डाइट नहीं चाहिए होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं चाहिए होता है। हर इंसान के बॉडी में बॉडी वेट से दुगना प्रोटीन लगता है, पर कब लगता है बोलो तो? बहुत सारे ट्रेनर को या फिर सो कॉल्ड ट्रेनर को यही नहीं पता होगा कि प्रोटीन बॉडी में काम क्या करता है। बस लिखा होता है 20 ग्राम प्रोटीन है, इतना ग्राम प्रोटीन है, चला देते हो और आप लोग भी खुशी खुशी ले लेते हो। पर आपको पहले ये जानना है कि आप जो खा रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्रिएटिन हो जाए, चाहे वो प्रोटीन हो जाए, चाहे वो BCAA हो जाए, या फिर मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज दिखाता हूँ, चाहे वो प्री वर्कआउट हो जाए, ऐसा नहीं है कि वही सेफ है या फिर नेचुरल है कुछ भी। पर आपको खुद रिसर्च करना है कि वो कितना सेफ है, कितना नहीं है, क्योंकि बॉडी में आप अपना पैसा दे रहे हो तब जाके वो दे रहा है। और जहां से ले रहे हो, जिससे भी ले रहे हो, ऑथेंटिक चीज होना चाहिए। ऑथेंटिक अगर नहीं होगा ना मेरे भाई, तो हर एक चीज नुकसान करेगा। देखो मैंने रिसेंटली सुन रहा था कहीं पे कि प्रोटीन खा के कोई बंदा टपक गया। कैसे टपका भाई? प्रोटीन से तो कोई मरता नहीं है। मेन दिक्कत क्या है कि वो उसने जहां से वो चीज लिया था या फिर जिससे वो चीज लिया था वो फेक माल दिया था, तभी वो मरेगा, वरना तो कोई चांस है नहीं। और एक बात, प्रोटीन सबको लेना चाहिए, पर कितना लेना चाहिए, मेन बात यही है, कितना लेना चाहिए मेरे भाई। आप अपना बॉडी वेट लो,
मान के चलो 60 किलो के हो, सपोज। आप देखो कि आपका बॉडी में मसल है कि मसल नहीं है, कि फैट है कि फैट नहीं है, ये सब देखो। आप डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर अपना BMR करो, BMR गूगल कर लो क्या है। तो करने के बाद डॉक्टर को जाके बोलो कि डॉक्टर मेरे को अभी कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और एक गलती जो लोग कर देते हैं जिम जाने के बाद, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, हर एक चीज में प्रोटीन ढूंढने लग जाते हैं। बंद करो यार, क्योंकि अगर आप 60 किलो के हो तो आपके बॉडी में 120 से ज्यादा प्रोटीन जरूरत ही नहीं होता है, जरूरत ही नहीं होता है। ये चाहे आप सप्लीमेंट से करो या फिर चाहे आप फूड से करो, मतलब खा के करो। मेन सप्लीमेंट जो मैं बोलूंगा, जो मैं रिकमेंड करूंगा, फूड, खाना, ठीक है, खाबार। तो खाना अगर आप नहीं खाओगे, अगर आप दुनिया भर के सप्लीमेंट, स्टेरॉइड जो भी लगा लोगे, कुछ नहीं होगा। खाना खाओ, वर्कआउट करो, सब हो जाएगा। देखो, हर एक इंसान का लाइफ शेड्यूल अलग होता है मेरे भाई। देखो, अगर मान के चलो मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मेरा लाइफ शेड्यूल अलग है। मेरा दिन से सुबह से लेकर उठ के जिम, ये सब ही रहता है। पर नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल लोग जिनका ऑफिस का काम रहता है, 9 to 8, 9 to 5 जॉब है, ये सब है, उनके लिए अगर आप लोग ऐसा बोलोगे कि उनको, सॉरी, उनके लिए अगर आप ऐसा बोलोगे कि उनको ये करना है, क्या बोलो तो, आओ इंटेंस कार्डियो करो, इंटेंस वर्कआउट करो, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका वो काम नहीं है। उनका काम है ऑफिस पे जाना, ये सब करना। आप पहले ये समझो, जो ट्रेनर लोग है या फिर जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि बॉडी उनका कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हर दिन का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता मेरे भाई। अगर आप देख रहे हो कि क्लाइंट को, या फिर आप क्लाइंट हो, आप देख रहे हो कि आपका उस दिन एनर्जी नहीं है, तो हल्का वर्कआउट करो या फिर मत करो, जस्ट बैठे रहो, देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो। हर दिन वर्कआउट करना जरूरी नहीं है, जरूरी ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका गोल है फिट रहना, तो आप अगर सोच रहे हो, और एक कमेंट आया कि, एक सेकंड, क्या था, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, राइट। बैलेंस डाइट क्या होता है और कैसे इसको बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लोगों को जो चीज बताया जाता है कि डाइट में प्रोटीन ऐड करो, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब लौड़ा लसन फालतू बात है। क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लोगे तो काम तो होगा ही नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखो, प्रोटीन के लिए जो लोग फूड से ले रहे हैं या फिर सप्लीमेंट से ले रहे हैं, ज्यादातर डिपेंडेंट हो रहे हो आप मीट पे या फिर एग पे। तो ये अगर आप ज्यादा लोगे तो आपकी किडनी पे स्ट्रेस आएगा, लिवर पे स्ट्रेस आएगा। ये चीज लेने से पहले ना, आप एक काम करो, जिम जाने से पहले प्रॉपर एक ब्लड वर्क करो, प्रॉपर एक अपना बॉडी का चेकअप कराओ, जिसमें आप अपना ऑर्गन, लिवर, किडनी, हार्ट, इसका सबका एक टेस्ट कराओ। और बॉडी में क्या क्या ज्यादा है, क्या क्या कम है, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, ये सब टेस्ट कराओ। लड़की लोगों के लिए एस्ट्रोजन, लड़कों के लिए टेस्टोस्टेरोन, ये चेक कराओ। क्योंकि आपके बॉडी में जो चीज कम है, आपको सप्लीमेंट वही चीज का लेना है। अगर आपके बॉडी में मान के चलो विटामिन बी की कमी नहीं है, तो आप फालतू में विटामिन बी क्यों लोगे, B12 क्यों लोगे, क्यों लोगे बोलो, बेफालतू का तो पैसा है नहीं। तो और एक चीज, आपके डाइट को बैलेंस होना चाहिए। देखो, बैलेंस डाइट आप कैसे समझोगे कि ये बैलेंस डाइट है कि नहीं है। आपको किसी ने भी डाइट दिया हो, कहीं से भी दिया हो, उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि गैपिंग कितना है। मतलब अगर आप एक एथलीट हो, आपके पास 6 to 5, 4 जितना हो सके मील होगा। अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 मील होता ही है, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि क्या क्या उसने ऐड किया है, इंक्लूड किया है। देखो भाई, ऐसा नहीं कि आपको अगर जिम करना है या फिर बॉडी को सेफ रखना है या फिर वर्कआउट करना है तो आपको महंगा डाइट लेना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। घर का खाना खा के भी बॉडी बिल्डिंग हो सकता है। कैसे? अगर आपके पास सही नॉलेज है तो। डाइट करने में 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं लगता मेरे भाई, नॉर्मली पैसा लगता है। क्योंकि सब कुछ नॉर्मली चीज है, अंडे नॉर्मल है,
चिकन भी नॉर्मल है। पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बजट, बजट इज द बिगेस्ट इशू। ठीक है, कि अगर आप कॉलेज गोअर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास उतना बजट नहीं होगा कि आप चिकन अफोर्ड कर पाओ, जो कि रियलिटी है। पर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है या फिर अपने बॉडी को फिट रखना है या फिर मसल बनाना है, तो आपको देखना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो कि फिश। अगर आप बंगाल से देख रहे हो, कोलकाता से देख रहे हो, आपके पास कोस्टल एरिया है, तो आपके एक्सेसिबल है ज्यादा फिश। तो आप देखो कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से फिश में आता है, जो कि है सैलमन, या फिर बॉम्बे डक बोल के एक फिश आता है जो कि बहुत सस्ता मिल जाता है, या फिर आपका जो तेलापिया। आपका अगर चीज है कि मेरे को ये करना है, तो आप कैसे भी करके उसको निकाल लोगे कि मेरे को ये कैसे करना है, आप सोच लोगे। पर अगर आपको ऐसा है कि हाँ जाऊंगा कर लूंगा, कभी नहीं होगा। आपको जुनून होना चाहिए अंदर की मेरे को ये करना ही है, तभी होगा, वरना नहीं होगा, बस छोड़ दो। तो बैलेंस डाइट ये हो गया। और एक बात, बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन से ज्यादा आपका फाइबर होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो खाली डाइजेस्ट होगा ही नहीं, बॉडी को प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है फाइबर, हर तरीके का मिनरल्स, हर तरीके का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब होना चाहिए एक बैलेंस डाइट में। खाली प्रोटीन है तो नहीं होगा, उसमें फाइबर भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, मल्टीविटामिन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ मिला के होता है एक बैलेंस डाइट। ऐसा होना चाहिए बैलेंस डाइट। ये जो है ये एक रूबिक्स क्यूब है, अगर इसको हम लोग ऐसा उल्टा सीधा लगाते हैं तो क्या होता है, ये नहीं मिलता है, मिल नहीं पा रहा ना ये। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देंगे तो पूरा एकदम शेप में आ जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही कुछ है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है, दिस बॉडी गोस टू जिम, समझ नहीं पाए क्या, सुपर्णा जी क्या आप इसको थोड़ा क्लियरली समझा सकते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं आप, समझ नहीं पाया मैं कुछ। लो, अब जरा मेरे को ये चीज प्रॉपरली लिख के दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये क्या मतलब लिखना चाह रहे हैं। हेलो, तो जो मेन बात है कि अभी हम लोग जो बात में डिस्कस कर रहे थे कि डाइट और बैलेंस डाइट, ठीक है, ये हो गया। बैलेंस डाइट में सब कुछ होता है और डाइट में सब कुछ नहीं होता है। और एक बात आपको ये भी देखना है कि आपका गोल क्या है, गोल ओरिएंटेड डाइट बनाओ तभी जाके काम होगा। गोल ओरिएंटेड डाइट कैसे बनाए, जो ट्रेनर है आपको पहले ये भी देखना है कि आपको जो बंदा या फिर बंदी जो ट्रेन कर रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, ऑथराइज जगह से सर्टिफाइड है कि नहीं, ये पहले देखो, चेक करो। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो ट्रेनिंग करने के लिए, कराने के लिए, तो आप उसका पूरा चेक करो, चिट्ठा पूरा चेक करो कि ये मतलब जो आपको दे रहा है वो कितना नॉलेजेबल है, वो कहाँ से मतलब सर्टिफाइड है, ये पहले चेक करो। और ये भी चेक करो कि वो जिस जगह से सर्टिफाइड है वो जगह एक्चुअली में वर्क करता है, ये सब चेक करो। उसके बाद उससे डाइट या फिर ट्रेनिंग लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है, ट्रेनर लोगों की बॉडी एनाटॉमी क्या होता है, मसल वर्क कैसे करता है। उनको बस जिम का एक्सपीरियंस है, ऐसे उठाता है ऐसे मारता है, बस नहीं, नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। बॉडी का एक एनाटॉमी होता है, एक ह्यूमन बॉडी में मसल कैसे वर्क करता है ये सीखना होता है। ऐसे नहीं पता होता कि ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, नहीं, नहीं होता है। एक वर्कआउट क्यों करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही वर्कआउट करते गए तो कुछ नहीं होगा। और उसके साथ साथ, हाँ दे रहे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सुपर्णा जी, तो उसका ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो मतलब रिकवरी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इधर सुपर्णा जी ने लिखा है कि लाइक दिस बॉडी टाइप्स। अच्छा, ये थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ा समझ, जितना मतलब मैं समझा
उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बॉडी टाइप्स 3 तरीके से होते हैं। एक होता है जो जिसके बॉडी में जितना भी वो वर्कआउट कर ले मास बहुत कम आता है, जिनको मास गेनिंग करने में दिक्कत होता है। और एक जो होता है मीडियम, जिनके एस्थेटिक बन जाता है ठीक ठाक, मतलब मेंटेन हो जाता है। और एक होता है जो हम जैसे लोग, जिनके बॉडी में मास भी बहुत जल्दी आता है, फैट भी बहुत जल्दी आता है। ये 3 तरीके का ये होता है। अगर आप मेरे बात से सहमत है या फिर आपका क्वेश्चन अगर यही था तो आप एक बार यस लिखिए। अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं था तो आप फिर से एक बार डिटेल्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं समझ नहीं पाया ये वाला। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो कि था हमारा यूज एंड अब्यूज। यूज एंड अब्यूज क्या है मेरे भाई? बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि यूज क्या होता है, अब्यूज क्या होता है। ठीक है, यूज होता है जो कि हम लोग ले रहे हैं, कुछ चीज यूज कर रहे हैं। एब्यूज क्या होता है? फिर एब्यूज ये होता है कि कुछ चीज आप ले रहे, एक्सेसिव अमाउंट में आप कुछ चीज ले रहे, उसको बोलते हैं एब्यूज। जो कि अभी के लोग ज्यादातर यूज से ज्यादा एब्यूज करते हैं। ये देख के मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगता है कि उनके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर, फिर भी किसी ने भैया ने किसी जिम गोअर ने बता दिया कि ऐसे ये करना है, तो वो बस कर रहे हैं। उनको खुद भी नहीं पता कि वो क्या है, बस कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। अगर आपको भी ये करना है कि जिम जाके मसल बिल्ड करना है या फिर कोई कंपटीशन खेलना है, कुछ भी करना है, जैसे कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो ऐसे टाइप का मेडल्स कुछ जीतना है, अचीवमेंट करना है या फिर कुछ भी करना है। ठीक है, जिम के रिलेटेड में कुछ भी करना है, आपको अपना कैरियर बनाना है जिम को, तो मेरे भाई क्या करना है देखो। अगर आपका कैरियर बनाना है, आपको जिम को ही मतलब कैरियर बनाना है, तो आपको कुछ चीजें मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि है आपको इसको लॉन्गजिविटी में खेलना पड़ेगा। देखो, 2 चीजों से होता है नेचुरल, एक होता है इनहेंस। अगर आप नेचुरल जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप नेचुरल हो सकते हो, रह सकते हो, तो ऑलवेज गो फॉर अ नेचुरल। इनहेंस में कभी घुसने का जरूरत ही नहीं है। पर और एक बात, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 10 बंदे जो कर रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 बंदे स्टेरॉइड माल ठोक के कर रहे हैं, आप नहीं ठोक के कर रहे हो। नेचुरल कितना कर लोगे मेरे भाई, कितना बोलो तो? नहीं हो पाता उतना। आई नो, आई एम एन इनहेंस एथलीट। मैं इनहेंस हो गए, मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरली इतना नहीं होता है, तभी इनहेंस होना पड़ता है। पर तभी इनहेंस हो जब आपको प्रॉपर उसका जरूरत पड़े, तब प्रॉपर जब उसका जरूरत पड़े तभी हो। और बॉडी में सब्सटेंसेस रखना मत, और टीआरटी करना, पीसीटी करना, प्रॉपर चीजों को बॉडी से खींच के निकाल दो, फेंक दो। और एक चीज जो लोग बोलते हैं ना, छोटा मोटा साइकिल चला लो, सेफ होता है, घंटा कुछ नहीं होता है। आप अगर बॉडी में कुछ ड्रग, कुछ एनाबॉलिक, कुछ बैन सब्सटेंसेस, कुछ परफॉर्मेंस इनहेंसर यूज कर रहे हो, तो वो घंटा कभी सेफ हो ही नहीं सकता। इट्स द ट्रूथ। इससे कड़वा सच और कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर इसको आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो कर लो, अगर नहीं कर पाते हो तो इट्स अप टू यू, क्योंकि इससे ज्यादा सच कोई बोलेगा नहीं। और ये वाला जो मैंने बोला ना, ये कभी आपको कोई बताएगा नहीं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा वर्क करता है, क्योंकि उनका धंधा इससे चलता है। अगर कोई ट्रेनर आगे आपको ऐसा बता देगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, तो आप कभी उसको फॉलो नहीं करोगे। मेन बात यही है। देखो, सच बात जो लोग बोलते हैं उनके क्लाइंट ज्यादा नहीं होते, झूठ बात जो लोग बोलते हैं उनके क्लाइंट बहुत ज्यादा होते हैं। देखोगे ऐसे जिम में जो लोग मतलब माल ठोक के बॉडी बॉडी बना लिया, अभी उसको मेंटेन कर रहे हैं बस, तो उनके पास जाके देखोगे इतना सारा लड़का, इतना सारा लड़की लोग बोल रहे हैं भाई 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 मेरा बॉडी बना दो। ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ी ना कि आपका बॉडी बना देगा, वो आपको जस्ट अपना नॉलेज शेयर कर सकता है अगर उसके पास प्रॉपर है तो, या फिर वो आपको इंजेक्टेबल शेयर कर सकता है। इससे फायदा और नुकसान पहले जान लो। कोई भी चीज अगर आप अपने बॉडी में इंजेक्ट या फिर ओरल फॉर्म में ले रहे हो, तो इसका बहुत सारा नेगेटिव साइड इफेक्ट है। पॉजिटिव तो है ही नहीं, वैसे पॉजिटिव कुछ है नहीं लॉन्ग टर्म में, सब नेगेटिव ही है। जो आप देख पा रहे हो 2 पल की खुशी, जो कि आप देख पा रहे हो 2 पल में आप मतलब ह्यूज हो जा रहे हो, मतलब बहुत मसल मास बढ़ जा रहा है, फैट लॉस हो जा रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है, पर
ये सब नेचुरल नहीं है मेरे भाई। आपको पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि नेचुरल बंदे कभी इनहेंस ना हो। क्योंकि ना हो, क्यों ना हो? आप बोलोगे कि भाई आपने तो इनहेंस हो लिया, अब हमको नहीं बोल रहे हो। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। इनहेंस आप तभी हो जब आपको कोई कंपटीशन या फिर कुछ करना होगा तो, और वो भी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर, वरना मत हो। अगर आपका कोई काम नहीं है तो सो मत हो, प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। क्योंकि इनहेंस अगर एक बार आप हो गए, आपका किडनी, लीवर, हार्ट हेल्थ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप एक बंदे को या फिर कोई बंदी को आप देख रहे हो, स्टेज पे खड़ा है, श्रेडेड है, उसके बॉडी में एब्स है, प्रॉपर मसल पॉप्ड है, जाइंट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा फिट है, नहीं है। इसका मतलब कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा सही है। उसका अगर आप अभी ब्लड वर्क कराओगे तो निकल जाएगा कि उसका ब्लड वर्क आपसे बहुत ज्यादा घटिया होगा। जी, व्हाट इज देखो, इग्नोर का बात नहीं है। जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको भी पता है कि बंदे का लग जाएगा लंका, पर फिर भी वो लोग यूज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? मनी, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, इसलिए तो करा रहे हैं। मान के चलो, हाँ, मान के चलो ये एक स्टीरॉयड है, ये एक पेन है, पर मान के चलो ये एक स्टेरॉयड है। ये मेरे को खरीदने में आ रहा है मान के चलो 200 रुपए का, ठीक है। इसके बॉडी में तो कोई एमआरपी लिखा नहीं है, मैं अभी इसको कैसे मर्जी सेल करूं। स्टीरॉयड है, स्टेरॉयड है, सॉरी, स्टेरॉयड है, और ये काम करता है तभी ये मार्केट में मिल रहा है। और स्टेरॉयड कभी आपको ओपनली मार्केट में नहीं मिलेगा मेरे भाई। स्टेरॉयड आपको मिलेगा हमेशा इलीगली। इलीगली बोले तो कैसे इलीगली? जो लोग ऑथराइज सेलर है उनके पास स्टेरॉयड मिलते हैं, पर जो लोगों के पास आप देख रहे हो, जिनके भैया लोग हैं, जिनके पास आप स्टेरॉयड देख रहे हो मिल रहा है, वो कभी भी ऑथराइज नहीं है। उनके पास चेक करना जाके, उनके पास कोई ऑथराइजेशन कोई है, गवर्नमेंट का कुछ है कि नहीं? नहीं होगा, 110% टाइम नहीं होगा। क्योंकि स्टेरॉयड कभी ह्यूमन यूज के लिए बना ही नहीं गया था, ठीक है। जो एम्प है, एम्प नाम तो सुने होंगे, एम्प, AMP, अगर नहीं सुने तो गूगल करो, अभी करो, गूगल करना, देखना कि एम्प, एम्प क्या होता है? परफॉर्मेंस इनहेंसर है। बहुत सारे पावर लिफ्टर यूज करते हैं, सारे पावर लिफ्टर यूज करते हैं, बहुत सारे नहीं, सारे जो भी कंपटीशन खेल रहे सारे पावर लिफ्टर यूज करते हैं एम्प। क्यों यूज करते हैं और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? इसका साइड इफेक्ट क्या है? देखो, एम्प कभी बना ही नहीं गया था ह्यूमन यूज के लिए, ये बनाया गया था घोड़ों, हॉर्स, इनके यूज के लिए, ठीक है। सभी स्टेरॉयड बना था एनिमल यूज के लिए, पर ह्यूमन इसको यूज नहीं, एब्यूज कर रहे हैं। यही दिक्कत है, यूज और एब्यूज में यही तो दिक्कत है मेरे भाई, कि आपको नहीं पता कि वो उसको यूज कैसे करना है और उसको एब्यूज आपसे हो जा रहा है। हाँ, जो साइड इफेक्ट है, हार्ट हेल्थ, लिवर, किडनी। अगर आप ओरल में जा रहे हो, मतलब टैबलेट फॉर्म में कोई स्टेरॉयड खा रहे हो, तो आपका ये सब होगा। अगर आप इंजेक्टेबल में कुछ ले रहे हो तो इसमें आपको बहुत कुछ हो सकता है, हार्मोन सप्रेशन, सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब हार्मोन बॉडी के अंदर अंदर बहुत सारे चीजें हो जाता है कि इनलार्जमेंट हो जाता है कोई ऑर्गन का, या फिर कोई ऑर्गन का सिकुड़ जाना, ये सब चीजें होता है। इट इज नेसेसरी टू टेक स्टेरॉइड फॉर बॉडी। देखो सुपर्णा जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा मिसिंग है। बॉडी के लिए स्टेरॉइड कभी नहीं चाहिए होता है, कभी नहीं चाहिए होता है। पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग का बोलोगे तो यस, इट्स नेसेसरी। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स है और एक अनहेल्दी स्पोर्ट्स है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अनहेल्दी स्पोर्ट्स और हेल्दी स्पोर्ट्स के बीच का आपको डिफरेंस पहले जानना पड़ेगा कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है, ठीक है। अगर आप माल, स्टेरॉइड ऐसा कुछ ले रहे हो तो आपको पहले ये बात जानना बहुत ही ज्यादा ये होगा कि वो एक अनहेल्दी चीज है, नहीं लेना चाहिए। पर अगर आप ले चुके हो, कैसे आप उससे बचोगे या फिर रिवर्स करोगे? साइड इफेक्ट जो होता है वो तो आपको दिख ही जाएगा, आप उसको गूगल कर लेना, जो भी चीज आप ले रहे हो उस आप, मैं बताता हूँ बचोगे कैसे। ये एक चीज है, ये इंपोर्टेड में आता है और ये बहुत ज्यादा महंगा है। अगर आप बचना चाहते हो तो इसको लेना, टूटका, ठीक है।
ये बीपी का टूटका है, नॉर्मल कोई टूटका से काम नहीं होता, घंटा कुछ काम नहीं होता, ठीक है। ये मैं पर्सनल यूज करता हूँ बिकॉज आई एम एन इनहेंस एथलीट। इस चीज को हमेशा अपने पास रखो, ये बहुत महंगा आता है मेरे भाई, ये हम लोगों को ही आता है, मतलब मान के चलो 2500 600 के कुछ आता है, हम लोग इसको सेल करते हैं वही, डिपेंड करता है, 2800 से 3000 के अंदर सेल करता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना क्या है, ठीक है। ये इसको अगर आप यूज कर सकते हो तो करो, वरना कुछ घंटा लिफ्ट 52 बहुत फालतू चीज है, उससे कुछ काम नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 3000 का 4000 का कोई स्टीरॉयड लगा लूंगा, उसके साथ साथ मैं अपना मतलब लिफ्ट 52 लेके मैं अपना काम सर डालूंगा, नहीं होगा, मर जाओगे। एक सेकंड, मेरा एक भाई जो है अमित, मेरे भाई, तो उन्होंने कुछ कमेंट किया, वो भी बहुत दिनों से जिम कर रहे हैं और नेचुरल जिम कर रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन आया, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। टेलिंग यू ब्रदर, आई एम जिम ऑफ, ओके, जॉइनिंग द जिम, वेट, ओके। तो देखो, वेट गेन, ये फिर से एक गलत वर्ड है। आप वेट गेन करने के लिए आप उल्टा सीधा खा लोगे तो आपको वेट गेन हो जाएगा, पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा बल्क और वेट गेन में क्या डिफरेंस होता है। बल्क होता है जो आप कैलकुलेटेड कैलोरीज लेते हो, उसको बोलता है बल्क, और एक होता है वेट गेन, जो कि आप कुछ भी उल्टा सीधा जंक खा लिए तो आपको वेट बढ़ गया, बस वही दिक्कत है। वेट में आता है फैट और बल्क में आता है फैट प्लस मसल, अगर आप नेचुरली करोगे तो। अगर इनहेंस होके करोगे तो खाली मसल आता है, तो उसमें भी कुछ दिक्कत है, जैसे कि अगर आप नेचुरली करोगे तो जो मैंने बोला फैट के साथ मसल आता है, जो कि दिखने में झूला झूला लगेगा, फेस थोड़ा फुला फुला लगेगा। आप अगर स्टेरॉइड लेके करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, खाली मांस बढ़ेगा, खाली भयंकर लेवल का मांस बढ़ जाएगा, आप सोचोगे कि आप बहुत खुश हो जाओगे कि ये सब हो गया मेरा भाई, मेरा तो जिंदगी सही है, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको नेचुरल सेफ रह के करना है तो उसके लिए आपको गेनर ले सकते हो, मैं तो बोलूंगा गेनर ना लो, एक अच्छा वे प्रोटीन अगर हो सके तो बजट में है तो ले लो, या फिर घर का खाना खाओ, ठीक है। आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर मिल लेना है, उसके साथ एक अच्छा ब्रांड का क्रिएटिन लो, वेल कोर का छोड़ के कोई भी ब्रांड का क्रिएटिन ले लो, क्योंकि वेल कोर का क्रिएटिन को मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेल कोर का क्रिएटिन, पहले आपको समझना पड़ेगा, वो एक माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन है, ठीक है। मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज में क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोनाइज क्रिएटिन जो है एक्स्ट्रा माइक्रोनाइज होता है, उसमें आपका बॉडी में खाली पानी बढ़ेगा, वो मसल मास तो ऐड करेगा पर पानी ज्यादा देगा, जिसको बोलते हैं वाटर, बॉडी में वाटर आ गया, जिम का भाषा में जो लोग बोलते हैं, वो ज्यादा करेगा, बल्क से ज्यादा फूले फूले ज्यादा दिखोगे। हाँ मसल बड़ा होगा, दिखेगा दिखेगा बस दिखेगा, बड़ा उतना नहीं होगा, पर आप अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज करते तो होगा। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप क्रिएटिन HCl यूज करो, जो कि थोड़ा महंगा आता है, थोड़ा नहीं बहुत महंगा आता है, हम लोग तो डायरेक्ट इंपोर्टर है, हम लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको कोई भी जेन्युइन सप्लीमेंट खरीदना है ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम लोगों को कांटेक्ट करें, घर बैठे बैठे आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा, ऑथराइज और जेन्युइन बेस्ट प्राइस में, सिंगल प्रोडक्ट भी आपको होलसेल रेट में मिलेगा। और एक चीज जो कोई भी ब्रांड का लो क्रिएटिन, पर ये चीज आपको देखना है कि क्रिएटिन काम क्या करता है। क्रिएटिन का काम है बॉडी में पानी धराना, मतलब बॉडी में पानी देगा, पानी पुश करेगा तो का बॉडी फूलेगा, फूलेगा तो मसल बढ़ेगा, मेन बात यही है। पर आपको ये भी देखना है कि मसल आपका अगर बढ़ रहा है तो वो क्या पानी वाला वेट बढ़ रहा है कि आपका सही में मसल बढ़ रहा है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो कि है आपका ये वाला, इससे खाली पानी वाला वेट बढ़ता है, तो आप अगर उसको खाना छोड़ दोगे 3 4 दिन या फिर 10 दिन, आपका बॉडी से पूरा पानी फ्लश आउट हो जाएगा, आप देखोगे आप पतले हो गए। नहीं, हाँ यही होता है। आप अगर कोई ब्रांड का लेना चाह रहे हो, MB का लो आग बंद करके, आइसोप्योर का लो, या फिर आपके पास अगर बजट थोड़ा अच्छा है तो इनहेंस का लो, इनहेंस। एक मैं आपको, नहीं छोड़ो ये नहीं दिखाएंगे, तो इनहेंस का लो। मैं पर्सनली बहुत सारा ब्रांड का यूज किया हूँ, कोई भी ब्रांड बेकार नहीं है, सब ब्रांड अच्छा है, पर मेन बात क्या है कि हर ब्रांड का एक एक अपना पर्पस होता है।
विलकोर का पर्पस आपको फुलाना, आइसोप्योर का पर्पस आपका लीन गेन देना, ठीक है। एमबी का पर्पस आपका लीन प्लस हल्का बल्कि। आप पहले समझो, स्टडी करो। और आप अगर सोचते हो कि 250 ग्राम का मैं एक क्रिएटिन खरीद लूंगा, उसमें मेरा भाई भयंकर लेवल का हो जाएगा, लौड़ा लहसुन कुछ नहीं होगा। एक क्रिएटिन के डब्बे से कुछ नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं होता। मेरे पापा पावर लिफ्टिंग में थे, मेरे मम्मी के साइड में भी बॉडी बिल्डिंग पावर लिफ्टिंग के साइड के लोग हैं, तो हम ऐसा बोल सकते कि मेरा एक एलीट लेवल जेनेटिक्स है। जब मेरे को ही काम में नहीं दिया, तो आप लोग अपना नॉर्मल जेनेटिक्स लेके कैसे सोच रहे हो कि एक डब्बे में काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये रियलिटी है, हो ही नहीं सकता। एक डब्बे में कभी किसी का क्रिएटिन से भला नहीं हो सकता। क्रिएटिन का आपको खाना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि ये इसको आपको बहुत दिन यूज करोगे तो ही जाके आपको रिजल्ट दिखेगा, विजिबल रिजल्ट। क्रिएटिन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, और क्रिएटिन को आप खाने से फुलफिल नहीं कर सकते। प्रोटीन को कर सकते हो, पर क्रिएटिन को नहीं कर सकते। क्रिएटिन आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्रिएटिन के साथ साथ आप क्या ले सकते हो, अगर आप सोच रहे हो नेचुरली, तो बस क्रिएटिन और गेनर, या फिर ये ओके 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 मल्टीविटामिन। हाँ, और एक चीज मैं मिस कर गया था, थैंक यू अमित भाई, इसको इंक्लूड करने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ, रुको। अब आप लोग बोलोगे कि ये बंदा अभी पागल हो गया, क्या लेके बैठ गया। ये है रियलिटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, बोलो या फिर कुछ भी। इसमें बहुत सारा चीजें आता है, जैसे कि आपका स्टैक, इसको बोलते हैं महीने का स्टैक, ठीक है। ये मेरा अभी तो मैं इनस उतना नहीं हूँ, तो ये अभी उतना नहीं है मेरे पास। देखो, आपको कुछ चीजें रखना है, जो कि आपका पहला हो गया। पहला आपका हो गया ये अश्वगंधा, ये आपको रखना है मेन। फिश ऑयल का बता रहे, रुको ना भाई। ये रखना है टूट का, एक सेकंड। बायोटीन रख सकते हो अगर बाल झड़ रहे तो। और मैंने बाकी तो फेंक दिया, अभी तो है नहीं, ठीक है। हाँ, फिश ऑयल, इसमें भी एक थोड़ा दिक्कत है। फिश ऑयल ले तो कहाँ से ले, कौन सा ले, कौन सा ब्रांड का ले, बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है उसमें। फिश ऑयल जो है, मैं तो बोलूंगा फिश ऑयल, अगर आप मछली नहीं खाते हो, सैलमन फिश नहीं खाते हो, तो आपको फिश ऑयल लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, वो आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर डॉक्टर दिखाओ, टेस्ट कराओ, तो वो बता देंगे आपको। नॉर्मली अगर आप जिम जा रहे हो, आपको फिश ऑयल, लीवर गार्ड, क्योंकि आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, अश्वगंधा हार्मोन बैलेंस के लिए, मल्टीविटामिन जिसमें आता है A to Z ले लो, या फिर एक कैल्शियम, बहुत अच्छा वाला एक कैल्शियम लेना, बहुत अच्छा वाला, थोड़ा पैसा आएगा जाएगा उसमें, वो वाला एक लेना। और एक लो आप टेंडो केयर, जो जॉइंट के लिए होते हैं, ठीक है। फिश ऑयल जो अगर आप कुछ ले रहे हो, तो अच्छा ब्रांड का लेना, और हो सके तो वो एलस इसका होना चाहिए, कोई सैलमन फिश का अच्छा वाला होना चाहिए। और आपको एक बेस्ट फिश ऑयल चाहिए, तो हमसे कांटेक्ट करो, हमारे पास है, हम दे देंगे। और एक बात, अगर आप फिश ऑयल का सोच रहे हो, तो मैं बोलूंगा एक ब्रांड है टाटा का फिश ऑयल, वो ले सकते हो, या फिर एलस्कन फिश ऑयल भी है, वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आप देखो पहले आपका पर्पस क्या है। अगर आपका हल्का फुल्का कोई पर्पस है, तो टाटा वाला लो। अगर आप एथलीट वाला पर्पस है, तो मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है। और कुछ अमित भाई, या फिर किसी का और कोई क्वेश्चन है? और एक बात, अगर आप वेजिटेरियन हो, तो भी आप फिश ऑयल ले सकते हो। उसमें आपको फिश ऑयल की जगह पे आपको लेना पड़ेगा Omega 369, क्योंकि फिश ऑयल का कंपोनेंट वही है, Omega 369, ठीक है। Omega 369 आप ले सकते हो, वीगन वाला भी आता है। वो थोड़ा सा शायद महंगा आता है, मैंने देखा नहीं कभी, मैंने लिया भी नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा आप लोग देख लेना। किसी का अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं। इसका और कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
चलो तो फिर टॉपिक अभी चेंज करते हैं, जो कि है अभी हम लोग बोलते हैं कैफीन डिपेंडेंसी। अभी बहुत लोग बोलोगे कि ये क्या होता है, ये तो एक नया वर्ड हम लोगों ने सुन लिया, कैफीन डिपेंडेंसी, ये क्या होता है मेरे भाई? तो कैफीन डिपेंडेंसी ये होता है कि मान के चलो आप ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉफी पी के वर्कआउट करते हैं, जो कि एक अच्छा चीज है। तो आप अभी बोलोगे कि कॉफी पीना तो अच्छी बात है, डॉक्टर भी रेकमेंड करता है, तो क्यों ना पिए भाई? हाँ बिल्कुल पियो, पर आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका वर्कआउट के लिए, एनर्जी के लिए कितना कैफीन लग रहा है, तो उतना ही पियो। या फिर आपको अगर किसी ट्रेनर ने या फिर किसी ने बोल दिया कि आपका स्टेमिना कम है, कोई भी ब्रांड का प्री वर्कआउट, ये जो आता है ना, प्री वर्कआउट पियो, लेना, पर सोच के लेना कि आपका बॉडी में उसका जरूरत है, आप उतना हेवी वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं। और कैफीन अगर आप ले रहे हो तो ट्राई करो उसको रात में सोने से मिनिमम 6 घंटे पहले लेने के, क्योंकि अगर आप रात को सोने के टाइम पे लेोगे तो आपका नींद का बैंड बज जाएगा, नींद होगा ही नहीं, क्योंकि कैफीन हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको देता है एनर्जी और अलर्टनेस, जिसके लिए आपका नींद होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और बहुत सारे मैंने देखा है कि प्री वर्कआउट में होता है कि क्या होता है बोलो तो, प्री वर्कआउट में बहुत सारा प्री वर्कआउट में ये होता है कि आपका बॉडी में जाने के बाद वो इचिंग होता है, खुजली होता है, जिसका रीजन है बीटा एलानाइन। अगर प्री वर्कआउट लेने से पहले मान के चलो ये आप प्री वर्कआउट आप ले रहे हो, जॉम्बी का प्री वर्कआउट है, बिग डैडी इन्फर्नोव का जॉम्बी वाला प्री वर्कआउट है, इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसको आप पढ़ना कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है? इसके अंदर अगर कैफीन, खाली यही नहीं, कोई भी ब्रांड का अगर आप ले रहे हो तो ये चीज चेक करना, कोई भी प्रोटीन ले रहे हो कोई भी ब्रांड का, चेक करना कि वो ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है कि नहीं, थर्ड पार्टी लैब टेस्ट से पास हुआ है कि नहीं। हर कोई प्रोडक्ट लेने से पहले ये चेक करना कि थर्ड पार्टी लैब से टेस्टेड हुआ है कि नहीं, क्योंकि कोई भी बोल देगा कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है भाई, देखो मेरे को पैसा मिल रहा है मान के चलो, तो मैं बोल दूंगा कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है, गू अच्छा है, तो आप गू खाओगे? नहीं खाओगे ना, यही बात है। आप अपने बॉडी में कुछ चीज डाल रहे हो पैसा देके, तो हमेशा ट्राई करो कि बेस्ट डालो, बेस्ट जितना हो सके। मार्केट में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा होगा पर बेस्ट चीज डालो, वरना मत डालो, डालो ही मत इससे अच्छा। हम्म अभी हम लोग स्टीरॉयड लेके कुछ बात कर रहे थे, हाँ। और मैं थोड़ा ब्रेक हो गया था, सुनो। तो अभी मैं बोल रहा था कि कैफीन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होता है मेरे भाई? अगर आप कॉफी खा के जा रहे हो, अगर आप बिना कॉफी खाए जाओगे तो आपको वो वाला किक नहीं मिलेगा, आप डिपेंडेंट हो गए। फिर आप प्री वर्कआउट में थोड़ा सा, फिर प्री वर्कआउट से भी आपका जब ये नहीं होगा, फिर लोग चले जाते एम्प, एम्प एम्प ए एम पी, एम्प एम्प के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एम्प क्या है आपको पता है? एम्प है एक घोड़े को लगने वाला एक मेडिसिन, जो कि घोड़े को लगता था। फिर इसका एक बहुत काला धंधा होता है इसका, जैसे कि होता है, मान के चलो सपोज कि पर्सन ए एक जिम ट्रेनर है, या फिर कोई भैया है जिम के जिसका बॉडी अच्छा दिखता है, जो खुद एम्प के एडिक्ट है। वो क्या करेंगे, वो एक एम्प का सीसी खरीदेंगे, खरीद के रखेंगे। फिर मान के चलो आप एक न्यू बिगिनर हो, आपको, आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए कि मेरे भाग जिम के एक भैया है, बहुत भयंकर लेवल का बॉडी है, बहुत भयंकर लेवल का वेट मारते हैं, मेरे को भी वैसा बनना है। तो उनसे ही पूछते हैं कैसे बनते हैं, वो आपको कोने में लेके गए, बोले कि भाई ये चीज सब नेचुरल है, एक सुई मान ले सब ठीक हो जाएगा, भयंकर पावर आएगा। आपने बोला कि कितने का है, वो बोला 200 500 कुछ कोई भी अमाउंट का है। आपने बोला ठीक है लगा दो, आपने लगा लिया। फिर जाके आपको पता चला कि वो तो एम्प था। बहुत बाद में पता चलेगा, क्योंकि एम्प तो उससे क्या होता है कि आपको एक एडिक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिन आप देखोगे कि बिना उसके तो मेरा वेट लग नहीं रहा, उस दिन तो बहुत भयंकर लेवल का पंप आया था, बहुत कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था पहले पहले। आप फिर क्या होगा कि जिम में जाके उसी बंदे को ढूंढोगे कि भैया 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 मेरे को वही वाला चीज चाहिए जो दिए थे, वो देख लिया आपको, फिर वो वही प्राइस में देगा, 10 15 दिन देगा, आप जिम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों में से गिने जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसका प्राइस बढ़ा देगा, धड़ाक करके बढ़ा देगा, बोलेगा कि थोड़ा थोड़ा लेने से तो कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, थोड़ा ज्यादा करके ले, खरीद ले, पूरा शीशी खरीद, वो अपने हिसाब से बेचेगा। ये सब होता है। एम बहुत फालतू चीज है,
एम्प अगर कोई ले रहा है ना, देखो लो, कंपटीशन के टाइम पे लो, सब ठीक है, पर किसी को सजेस्ट मत करो मेरे भाई, क्योंकि आपके ये सजेशन के चक्कर में ना बहुत लोगों का जिंदगी का ऐसे ही तैसे ही लग जा रहा है। एम्प का एडिक्शन बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार। टर्मिन और भी बहुत सारा चीज है, मॉर्फिन, ये सब चीजों को लोग यूज कर रहे हैं एज अ फैट लॉस। ये तुम लोगों को क्या सही में पता है ये सब क्या है? अगर नहीं पता है तो गूगल करो, हाथ में गूगल है, पकड़ो और करो, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है जानो, उसके बाद अपने बॉडी में इंजेक्ट करो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये सब ड्रग्स है, ये लोग बोल देता है कि मल्टीविटामिन है, बोल के इंजेक्ट करा देते हैं, आप लोग भी कर लेते हो। भैया ने कोई गोली दिया है खाने के लिए, गोली खा लेंगे तो बॉडी बन जाएगा, बॉडी बन भी जाता है, पर क्या बनता है? खोखला बॉडी, खोखला बॉडी। क्यों बोल रहे? मान के चलो, एक है डी बॉल, जिसको बोलते हैं डायनाबॉल, ये एक स्टीरॉयड है, स्टेरॉयड, स्टीरॉयड जो भी बोलो है। इसको कोई भैया ने आपको दे दिया, लेवल वेवल फाड़ के, मान के चलो ये एक डब्बा है, इसका लेवल वेवल फाड़ के या फिर लेवल के साथ ही आपको दे दिया, ले भाई मजे कर, इसका 30 खाना है, खाओगे तो बॉडी एकदम भयंकर लेवल का फूल जाएगा, मसल बन जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि है सही में हो जाएगा, पर उसके साथ साथ आपका लीवर, आपका हार्ट हेल्थ, आपका किडनी, सबका माँ बहन है, ये हो जाएगा। उसको आपको ठीक करने वाला तो वो बोलेगा नहीं, उसको आपको करना पड़ेगा पीसीटी, पोस्ट स्टेरॉयड थेरेपी। अगर इसको नहीं करोगे तो आपका जिंदगी वैसे ही झंड हो जाएगा, वैसे ही झंड हो जाएगा, जो कि ये रियलिटी है, ठीक है, जो कि ये रियलिटी है। और एक जो चीज मैं अभी देख रहा था, जो कि है एक सेकंड रुकना मेरा भाई लोग। एसी बंद करने गया था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो अभी और कोई टॉपिक है तो बोलो, वरना मैं स्टार्ट कर दूंगा। किसी का अगर और कुछ जानना है तो बोलो। अगर किसी को कुछ भी जानना है तो बोलो, वरना मैं अभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वैसे ही ये लाइव 1 घंटे का तो हो ही गया, और कुछ है तो सही में है तो बोलो, अगर नहीं है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइव हो सके, जितना हो सके उन भाइयों तक पहुंचा दो आप लोग, आपको मैं ये दे रहा हूँ कि आप लोग पहुंचाओ ये लाइफ को उस लोगों को जो लोग पहली बार जिम में जा रहे हैं, जिनके लाइफ में ये सब चीज है, जो जिनको नहीं पता है कि क्या गलत है क्या सही है, उन तक ये लाइफ पहुंचाओ, क्योंकि ऐसा खोल के भाई कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग इससे इनकम करते हैं, कोई बात नहीं करेगा ऐसा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, और एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा, क्या फेक है क्या रियल है, ठीक है। बेस्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक्स। सुपर्णा जी, आप मेरे को और एक चीज बताइए, जो आपने बोला बेस्ट प्री वर्कआउट, क्या आपका तात्पर्य ये ऐसा टाइप का कोई प्री वर्कआउट से है, या फिर कोई फूड का आप बता रहे हो, मतलब तो ये थोड़ा सा मेरे को क्लियर करके बताओ। प्लीज मेरे को थोड़ा सा फास्ट बताना कि आपका तात्पर्य क्या है प्री वर्कआउट से, आपका क्या मतलब प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, मतलब ये वाला प्री वर्कआउट जैसा कोई ब्रांड का हो गया इसका है, या फिर नॉर्मली कोई खाना या फिर कोई ड्रिंक्स हो गया इससे एनर्जी मिलता है वैसा टाइप? क्योंकि अगर मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। देखो, अगर मैं दोनों ही बोल देता हूँ, फिर आप अगर अभी में भी लैग हो रहा है या फिर कुछ भी, अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला जैसा मैंने दिखाया सप्लीमेंट प्री वर्कआउट का,
तो इसमें हर एक कंपनी का अलग अलग आता है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको बॉडी में किस चीज का नीड है। अगर आप चाह रहे हो बेटर पंप, बेटर कंट्रोलिंग, तो आप यूज करो ये वाला ब्रांड का। बिना इचिंग का चाहते हो तो ये वाला यूज करो। अगर आप चाहते हो कि एकदम भयंकर लेवल का एनर्जी रहेगा, खुजली बुजली होगा नहीं होगा वो अच्छा फूड वाला तो वो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ब्लड लॉक। ब्लड लॉक यूज कर सकते हो, या फिर बहुत सारा अच्छा अच्छा भी ब्रांड का है। बहुत सारे न्यू ब्रांड का भी है, एक फॉक्स वाला एक ब्रांड है। अगर किसी को कोई बेस्ट प्री वर्कआउट ट्राई करना है तो मेरे को से कांटेक्ट करो। बहुत सारा प्री वर्कआउट है, बेस्ट प्राइस में मैं भेज दूंगा, भिजवा दूंगा, घर तक मिल जाएगा बेस्ट प्राइस में। ठीक है। अगर आप बोलना चाह रहे हो फूड, तो उसके लिए आप ले सकते हो नेचुरली बीट रूट ले सकते हो। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि प्री वर्कआउट बॉडी में जाके करता क्या। आपको बॉडी में जाके एनर्जी देता है, आपके नॉर्मल जो काम करने का एनर्जी देता है, आपको फोकस बनाता है। बीट रूट का जूस बना के आप पी सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए इंस्टेंट एनर्जी तो आप ये पी सकते हो, क्या बोले तो कॉफी पी सकते हो, या फिर आप दोनों ही पी सकते हो। बीट रूट से आपका बॉडी का पंप बहुत अच्छा रहेगा, आपका बॉडी का लिवर डिटॉक्स होगा। बहुत काम है बीट रूट का। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिम जाने से पहले आप क्या खा के जा रहे हो, जिसको बोलते हैं प्री वर्कआउट मील, जो जिसमें आपका कार्ब में मानता हूँ ज्यादा होना चाहिए। और पोस्ट वर्कआउट मील जो आप आने के बाद खाते हो, उसमें आपका प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका बॉडी का जो आप वर्कआउट करके मसल को तोड़े हो, माइक्रो टीयर्स माइक्रो फ्रैक्चर्स जो करे हो, उसको रिकवर होने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें जरूरी होता है। आप देख लो आपके बॉडी में क्या चीज का कमी है, उस हिसाब से खाओ। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान का गोल अलग होता है, उनका वर्कआउट भी अलग होता है, और उनका काम भी अलग ही होता है। ठीक है, तो ये वाला चीज थोड़ा सा आप लोग देख लेना, देख के अगर आप कुछ कर रहे हो तो करो। ठीक है, और दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरे ये बोलने के बाद मेरे को नहीं लगता कोई जाके स्टेरॉइड ले लेगा, पर अगर लेते हो तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ लो। और इस वीडियो या फिर इस लाइफ से मैं किसी को भी उत्साहित नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप जाके स्टेरॉइड लो। इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। और मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हो कि, क्या बोलो तो क्या गलती करते हो, बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हो कि आते ही जिम में मेरे को एब्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करने लग जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनर है वो भी देख लेता है कि हाँ मेरा तो प्रॉफिट है, ये भी आपको सामान चिपका देता है और आप भी ले लेते हो। ये नहीं करना है। आप पहले जिम में जाओ, पहले सीखो। क्या सीखोगे? ब्रीदिंग, सांस लेना सीखो, प्रॉपर सांस लेना सीखो, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी वर्कआउट के लिए। अगर मेरा ये वाला बात आप सुनोगे तो आपको लगेगा क्या फालतू बात है, पर नहीं, फालतू बात नहीं है। अगर एक इंसान अपने सांस को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, माइंड मसल कनेक्शन बहुत बाद में आता है। बहुत लोग बोलोगे माइंड मसल कनेक्शन आता है, ये सब वो सब नहीं, वो बहुत बाद में आता है मेरे भाई। वो तो तब आएगा जब आपका मसल के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा। आप ऐसा करोगे तो ये मसल, या फिर पीठ का करोगे तो ऐसा मसल आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो बहुत बाद में आएगा। पहले आपका आएगा सांस, इस पे कंट्रोल। कंट्रोल आप कैसे करोगे, या फिर करने से क्या फायदा होता है? आप मान के चलो आपका बॉडी एक सोडे का कैन है, जिसको अगर हम लोग वेट लगाते हैं तो क्या होता है, एक कैन पिचक जाता है। अगर वो कैन भर्ती होगा, आप अगर उसके ऊपर वेट लगाओगे तो वो नहीं पिचकेगा। यही होता है आपके बॉडी के साथ। आपके जो लंग्स है, इसके अंदर आप अगर ऑक्सीजन भर लेते हो, सांस भर लेते हो, उसके बाद कोई वर्कआउट करते हो, कोई ये करते हो, तो आपका बॉडी में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप बिना ब्रीदिंग को मास्टरी किए कोई भी वर्कआउट करते हो तो आपका इंजरी होने का चांस और रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये पहले सीखो, उसके बाद आप सीखो। क्या सीखोगे?
ये सब बहुत बोरिंग चीज है, पता है। स्ट्रेचिंग सीखो, मसल रिलैक्स करना सीखो। स्ट्रेचिंग कैसे सीखोगे? एक होता है वार्म अप, एक होता है स्ट्रेचिंग। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप होता है अगर कोई भी वर्कआउट हम कर रहे हैं उसके पहले हाथ पैर घुमा के ऐसा ऐसा स्प्रिंट प्रिंट करके जो करते हैं उसको बोलते हैं वार्म अप। इसको पहले सीखो। या फिर कोई जिम में नॉलेज वाले, एडुकेशन वाले अगर कोई बंदे हैं उनसे पूछो। कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है जिसको पास नॉलेज है उससे पूछो। ऐसे एडवांस किसी से मत पूछो। अगर पूछना ही है तो गूगल से पूछ लो, सबसे बेस्ट। तो वो करो प्रॉपर एकदम। कोई फिर आपको करना है कि मान के चलो आपने लेग मार लिया, लेग का वार्म अप भी कर लिया था, बहुत अच्छा वाला लेग वर्कआउट भी हो गया। आपको अभी होगा क्रैम या फिर दर्द भयंकर वाला। तो आपको क्या करना है, मसल को रिलैक्स भी तो करना होता है। वो कैसे करोगे? वो करोगे स्ट्रेचिंग करके, मसल को स्ट्रेच करोगे। ये भी आप सीख लो कहीं से। देखो एक लाइफ के अंदर इतना कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतना सब सिखाना तो मुमकिन है ही नहीं। अगर आप चाहते हो मेरे से जुड़ना, मेरे से सीखना, तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, डीएम करो मेरे को। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करो, आप सीखो। ठीक है, आप सीखो, अपने लिए भी सीखो, अपने फैमिली के लिए भी सीखो, आप किसी को सिखा भी सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ये सीखना है कि प्रॉपर फॉर्म क्या होता है। अभी आप लोग बोलोगे जो, मेरे को तो फॉर्म पता है, मैं तो वर्कआउट करता हूँ, मैं तो डेडलिफ्ट करता हूँ, मैं तो बाइसेप कर्ल करता हूँ, मैं तो लेग वर्कआउट करता हूँ, मेरे को तो फॉर्म पता है। पर नहीं, नहीं पता है। देखो, एक वर्कआउट करने का एक जो तरीका होता है उसको बोलते हैं फॉर्म। और फॉर्म को ना अभी के जो इंस्टाग्राम के या फिर कोई भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है पूरा बिगाड़ के रख दिया। कोई बोलता है ऐसे मारो, कोई बोलता है ऐसे मारो, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो। उतना फैंसी नहीं जाना है मेरे भाई। देखो आपको बॉडी बिल्डिंग करना ही नहीं है, मेन बात। आपको करना है मसल बिल्ड करना है, हल्का फुल्का फ्लेक्स करना है, ये सब दिखाना है, बस हो गया। आपको अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करना तो आप बॉडी बिल्डर का वर्कआउट, उसका डाइट क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं करना चाहिए। उसका वो काम है, उसका वो काम है कि वो बॉडी को टोन रखे, इतना कुछ सब्सटेंस ले रहे। आप उसके जैसा खा भी नहीं पाओगे क्योंकि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इससे बना ही नहीं है, वो सब पचा ही नहीं पाएगा। आप अगर पहली बार कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी सब्सटेंस लेते हो आपका पेट खराब हो जाता है क्योंकि आपका बॉडी उसको लेने के लिए एडोप्टेड ही नहीं है। ये मेन दिक्कत है। फिर आप बोलने लग जाए तो प्रोडक्ट वाहियात है, फालतू है, ये है वो है, नहीं है। आपका बॉडी को आदत होना चाहिए, मेन बात यही है। What? ओके, प्री वर्कआउट मील में आप क्या ले सकते हो? आपके बजट के ऊपर वो डिपेंड करते कि आप क्या लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई एनर्जी वाला, तो कार्ब देखो, गूगल करो, गूगल बाबा हाथ में, गूगल करो, उसमें लिखो कि बेस्ट कार्ब सोर्स, क्योंकि कार्ब से हमारा एनर्जी आता है। वो लो, एक बेस्ट कार्ब का कुछ लो। ठीक है, आप ओट्स ले सकते हो, आप बनाना ले सकते हो, आप एक मिल्क ले सकते हो, उसमें ओट्स, बनाना, मूसली, ये सब डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, कॉफी ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। और पोस्ट वर्कआउट जो मील जो होता है वो हम लोगों का होता है रिकवर के लिए, तो उसमें हो सके तो ज्यादा करके फाइबर और प्रोटीन लेना। मल्टीविटामिन लोगे तो और भी अच्छा है। प्रोटीन के लिए आप चिकन ले सकते हो, एग ले सकते हो। और मल्टीविटामिन के लिए आप बीन्स ले सकते हो कुछ भी। और फाइबर के लिए आप बनाना टाइप कुछ ले सकते हो, जैसे कि मोचा हो गया, थोर हो गया, जो बनाना का फ्लावर होता है वो ले सकते हो, वो सबसे ज्यादा फाइबर होता है। आप वैरायटी ऑफ फ्रूट खाओ, ये सब आप कर सकते हो। अभी का लोगों का ना मतलब ये नहीं है कि कितना कम पैसे में मेरे को क्या मिला, वो नहीं करना है। जितना ज्यादा पैसे में मेरे को क्या मिला वो सब देखते हैं, जो भी है अपना अपना काम है। मेरा काम है लोगों को एडुकेट करना, जो कि मैं करता रहूंगा। अब उनके ऊपर है वो, प्रॉपर बात को जानने के बाद वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। किसी का अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना दूसरे टॉपिक्स भी बाकी है वो भी करना है। बहुत रात हो गया, बहुत रात हो गया। और 2-3 टॉपिक है, अगर कोई कुछ नहीं बोलता तो मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा अभी।
बाकी का कंप्लीट करके। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम्म। और एक जो चीज आता है आपका, ये क्या बोलो तो, दिखाओ, दिखा दूं? जो लोग फैट लॉस में यूज करते हैं, जिसका नाम है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक का नाम बहुत ज्यादा वायरल है, आप लोग सुने होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग फैट लॉस के टाइम पे यूज करते हैं ओजेम्पिक। ओजेम्पिक बना गया था डायबिटीज के पेशेंट के लिए। यस। या फिर ये जो चीज है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, रुको। ये जो चीज है क्लेनबिट्रॉल, ठीक है, ये भी चीज बनाया गया था आपका, मेडिसिन है ये एक। इसको बनाया गया था आपका एज्मा के पेशेंट के लिए, ठीक है। एज्मा के पेशेंट के लिए इसको बनाया गया था, और इसका काम है एज्मा को ट्रीट करना। पर इसको अभी के जो इन्फ्लुएंसर या फिर बॉडी बिल्डर लोग हैं, लेते हैं बॉडी को टोन करने के लिए, श्रेड करने के लिए, बॉडी का एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव फैट, स्किन के नीचे वाला फैट को हटाने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसका साइड इफेक्ट है कि आपका लीवर टॉक्सिक कर देगा। बहुत सारे साइड इफेक्ट और भी है। हैंड शेक होगा। हैंड शेक मतलब हाथ मिलाने वाला नहीं, नर्वस सिस्टम पे बहुत घटिया इफेक्ट करता है। और बहुत सारे चीज है और भी जो बॉडी बिल्डर लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया टेस्टोस्टेरोन, टेस्ट इनफेक्ट, और भी बहुत नामों से इसको जाना जाता है। देखो, अगर आपके बॉडी में, आपका अगर एज 30 से ऊपर जा चुका है, तो आपके बॉडी में, अगर आप मेल हो तो आपके बॉडी में होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन, जो कि बनता है जब आप एडल्ट हो तो उस टाइम पे, या फिर उससे पहले बनता है, जिससे आपका मसल मास बनता है। जो अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आपका बॉडी में मसल मास नहीं बनेगा, आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। जो लोग देखते हो ना बौने रह जाते हैं, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है बोल के ऐसा हो जाता है। और भी बाकी हार्मोन का भी मेन है, पर वो मेन है आईजीएच। बहुत सारा चीज है, जैसे कि बहुत सारे लोग स्टेरॉइड तो लेते भी नहीं, फिर भी स्टेरॉइड जैसा इफेक्ट क्या लेते हैं, सम्स लेते हैं। सम्स जान लो, सम्स क्या होता है? सिलेक्टिव एंडोजेनिक रिसेप्टर को बोला जाता है सम्स, जिसके अंदर स्टेरॉइड जैसा काम होता है, स्टेरॉइड जैसा साइड इफेक्ट होता है, पर स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है। जिसका एक हो गया एंड्रोबॉल एक्सट्रीम, फिर आपका आ गया लीन रॉल, और भी बहुत सारा कुछ आता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ दिखा सकता हूँ। ये सब इलीगल है, कुछ चीजें लीगल भी है। अगर आप लाइसेंस लेके कुछ कर रहे हो तो वो लीगल है, अगर विदाउट फार्मास्यूटिकल के लाइसेंस के कर रहे हो तो इलीगल है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज का मैं बात कर रहा हूँ, क्या सम्स क्या होता है। अभी मैं कुछ चीजें लाया हूँ। ये सम्स नहीं है, ये आपका है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट कटर इल कार्निटाइन। ये बहुत अच्छा है,
एथिक्स लैब का आता है, बहुत अच्छा फैट लॉस के लिए काम करता है। सम्स, जिसको हम जानते हैं, ये है सम्स, ये है लीन रॉल, जो अभी नहीं मिलता है, बहुत ही ज्यादा रेयर हो गया। ये होता है लीन मास, मसल मास को आपको बनाता है लीन रॉल। ये सब नहीं लेना चाहिए अगर आप नेचुरल करते हो। इस सब के साथ ये चाहिए टूटका, वरना आपका लिवर खत्म। और ये है एंड्रोबॉल एक्सट्रीम, इसके पीछे लिखा ही है कि आपका लिवर और किडनी पे इफेक्ट करेगा, फिर भी लोग लेते हैं, पता नहीं क्यों। ये जर्मनी का ब्रांड है, इंपोर्टेड में आता है, बहुत महंगा आता है ये सब चीजें। ये भी कुछ 6,000 7,000 का बिकता है, मतलब MRP है, बिकता है इससे कम में ही है, ठीक है, देख लेना आप लोग। ये मिलेगा नहीं अभी, ये नहीं मिलेगा, ये इंडिया से जा चुका है। ये मिल सकता है, एंड्रोबॉल एक्सट्रीम मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। ये दो सम्स में स्पेशली ये और ये दो बहुत ही भयंकर काम करता है और डेंजरस भी है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। स्पेशली ये गाइस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसका तो लीवर पे इफेक्ट होता ही होता है, टॉक्सिक लीवर बना देता है इसको, ठीक है। इसमें आपका भयंकर लेवल का मास आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, आप फाड़ दोगे, चीड़ दोगे, फाड़ दोगे, स्टेरॉइड भूल जाएगा उसको लोगे तो। ये भी लीन मसल मास बनाता है, आपका नहीं लेना चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। और ये है आपका एक फैट बर्नर, ठीक है। ये आता है आपका इनहेंस लैब का ही आता है, ECA शार्क, ECA शार्क आता है, बहुत भयंकर लेवल का फैट बर्नर है। इसका साइड इफेक्ट है, हल्का फुल्का है। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है गाइस इसका क्लेन विड्रॉल, बहुत भयंकर है। अगर आप कोई भी माल चला रहे हो, कोई स्टेरॉइड चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, कोशिश करो कि अल्फा या फिर मेडिटेक कंपनी का लो। प्रमोशन नहीं है, यही दो कंपनी है जो ठीक ठाक माल बनाता है। माल में भी डुप्लीकेसी आता है अभी तो, क्या बोले, करे तो करे, क्या करे, ले तो ले किससे। और मेडिटेक या अल्फा का बिना अगर कोई अच्छा ब्रांड का अगर आपको नहीं मिलता तो मत लो, क्योंकि उससे आपका फायदा से ज्यादा आपका नुकसान होगा। देखो, स्टीरॉयड ले रहे हो तो आपका तो नुकसान है ही है, पर फायदा भी तो होना चाहिए, कि वरना आप इतना पैसा खर्चा करके लोगे क्यों? क्योंकि स्टेरॉयड इतना इजी टू, मतलब इतना सस्ता नहीं मिलता है कि कोई भी जाके एड़ा वगैरह नत वगैरह जाके ले ले। ये जब आप ले रहे हो, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हो, आपका उसका पर्पस होना चाहिए लेने का, ठीक है। मैं इस लाइफ से किसी को भी उत्साहित या फिर ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी लो, ठीक है। आपको अगर लेना है तो आप तो वैसे भी लोगे, मैं जस्ट इधर नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है, किससे क्या डैमेज होता है, किससे क्या नहीं होता है। ये जस्ट एक एजुकेशनल लाइव है। जो गलत चीज है उसको मैं बोलता हूँ गलत है, जो सही है जिसको मैं बोलता हूँ सही है। जो गलत है वो गलत ही है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये मसल मास बढ़ाता है, उसके साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। तभी मैं दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि इसको लेना है किसको और किसको ये चीज नहीं लेना है। अगर आप एथलीट हो तभी इसको आप लो, पर विथ प्रॉपर सेफ्टी, विथ प्रॉपर TRT, या फिर विथ प्रॉपर सब कुछ के साथ, डॉक्टर से पूछ के आपका बॉडी चेकअप करा के उसके बाद लो। और जो मैं बोल रहा था खुजली वाला प्री वर्कआउट, सबसे ऊपर इसका नाम आता है, बिग मसल का कार्नेज, बहुत खुजली होता है भयंकर लेवल का। अब अगर पहले बार खाओगे तो कान पान लाल भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा। ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसको बहुत लोग यूज करते हैं, एब्यूज करते हैं इसको। कार्नेज वाला बहुत 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 ज्यादा कॉमन प्री वर्कआउट है। काम तो भाई एक नंबर करता है, मतलब पावर देता है। देखो, अभी हम लोगों ने सब टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लाइव में, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिंदा रहे तो। क्योंकि हम लोग सब इंसान है, इंसान का लाइफ का कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होता है।
ठीक है। राम राम, सत श्री अकाल, और जय श्री कृष्णा का, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी लाइव में। अगर आपको ये लाइव थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने जिम के मित्रों या फिर जो फ्रेंड लोग हैं आपके जिम में, जो ट्रेनर है, जो भड़वे लेवल के ट्रेनर है, उनको बताइए ये सब चीजें कि ये सब नहीं करना है। फिर भी वो सुनेंगे नहीं, उनका ये काम है करना, वो करेंगे। पर आप उनसे दूर हो जाए, दूर हो जाए बोले तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए उनसे दूर हो जाए। आप उनसे वर्कआउट पूछे अगर उनके पास नॉलेज है तो। पर आप किसी के भी बोलने पे, चाहे मेरे ही बोलने से, स्टेरॉइड या फिर सम्स मत लीजिए। आप पहले उसको लेने से पहले जानिए, प्रॉपर अपना ब्लड वर्क कराइए। आप देखिए आपका बॉडी में उसका कोई काम है कि नहीं। प्रॉपर डॉक्टर के साथ बैठ के बात करके प्रॉपर एकदम, फिर अगर आपको लेना है तो लीजिए। वरना ऐसे ही बेफालतू का बॉडी बनाने के लिए, खाली किसी को दिखाने के लिए, लड़की पटाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए किसी को मत लीजिए। क्योंकि सब लोग तो इंप्रेस हो भी जाएंगे, पर जब आपका बुरा दिन आएगा ना, जब आपका लीवर खराब होगा, जब आपका किडनी खराब होगा, तब कोई नहीं रहेगा आपके साथ। ये ऑनेस्ट बात है। सुनने में बुरा लग रहा है, लोग सोचेंगे कि हाँ भाई मेरा तो भाई है, मेरा जिम ट्रेनर है, मेरा बाप जैसा है। देखो और एक बात, किसी भी जिम ट्रेनर को अपना बाप मत बनाओ। बाप आपका एक ही है जिसने आपको पैदा किया। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि अपने जिम ट्रेनर को अपना पापा बना लेते हैं, मतलब पापा जैसा, या फिर पापा ही बना लेते हैं बोले तो। ये मत करो। आप पहले जानो प्रॉपर कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, सॉरी, क्या सही है और क्या सही नहीं है। अगर कोई चीज आपके लिए सही नहीं है तो वो सही नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी दे, चाहे मैं दूं, चाहे जिम ट्रेनर दे, चाहे कोई भी दे। आप पहले जानो कि उसका आपका बॉडी में जाके क्या इफेक्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, जानो। और किस कैसे उसको बैलेंस करता है, प्रॉपर नॉलेज लो, फिर जाके अगर लेना है तो लो। पहले नॉलेज लो, फिर सामान लो। क्योंकि ये सब जो चीजें, ये सम्स हो गया, कोई स्टेरॉइड हो गया, ये सस्ता नहीं आता है गाइस। ये बहुत ज्यादा महंगा आता है, और बहुत अच्छा काम तो करता है, पर साथ साथ बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपको लेना है प्रॉपर कोई गाइडेंस में जाके लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आपको अगर कोई कंपटीशन कुछ नहीं कर रहे हैं, नेचुरल रहो, खाओ पियो, रिकवरी पे फोकस करो, मस्त वर्कआउट करो, बिंदास रहो।